Hello, Assalamu alaikum students of class 7. How are you? I hope you will be fine. This is exercise 3B and you can open the book page number 111 if the book is available. In case the book isn't available, then don't worry. You shall be served with the question and the solution. Both you shall have a copy and pencil so that you could note down today's lecture. Okay, you can stop the video here and arrange the copy. Okay, if you have get one, now note this question. Okay, if you have done it, but if you like, you can solve this question yourself. Then you can come back to my video and match your solution with my solution. Okay, whatever is the case, if you have done it or not done it, now let me start for those students who are the beginners who still don't have any idea how to do this. K square will be as it is, minus 12 will be as it is, and this minus sign will be as it is, and this minus sign shall be placed inside the bracket. And now we need to think that in which table this 12 appears. This 12 appears in the table of 1, which is 112 times 12, 2 6 times 12, 3 4 times 12, 4 3 times 12, and 6 2 times 12, and at the end 12 1 times 12. But we have to select only that pair with the help of which we can get 4. How we can get 4? For example, I have to place two values here. In my previous videos I have told you we have to place two values here. By subtracting those two values we shall get 4. And why shall we subtract them? Why don't we add them? Because there was a minus sign here, and I told you already in all of many videos that we shall place that sign inside the bracket which is already behind this constant. So here it was minus sign, that's why I placed minus here. I didn't place this minus because of this minus. I shall place only that sign here which is already there. So by selecting which two values I can get 4, I think this pair will be the best one. 6k minus 2k, after subtracting them I can get 4 k square. Because of the minus sign, the sign inside the bracket will be changed. Because of this minus sign, the sign inside the bracket will be changed into positive sign, and 2k and minus 12 as it is. I shall take common from here and from here, from this pair and from this pair. K will be common here. Here it was k square and 1k is common, and other k will be inside the bracket. And here it was only 1k which is already outside, so only 6 will be written. And from here 2 is common. Why I am saying 2 is common? Because this 12 is actually the mixture of 2 multiply 6. So this 2 is common with this 2. So that's why I'm saying 2 is common. 2 will be common, so k shall be left here, and from here 6 will left alone. And if you can do by the other way, 2 6 times 12, so this 2 and this 2 is common, only 6 has been left. And one thing is noticeable by doing till here the procedure, you will notice that k minus 6 is here and k minus 6 should be here as well. Both of these things should be common. If these are not common, that's mean you have done some mistakes. And remember, we are doing factorization. I forgot to write the topic at the top: factorization. We are factorizing a quadratic equation actually. K minus 6, the benefit of both of these being common is that we can write it only once, and k plus 12 will be left alone. So the question has been done. Okay, thank you for watching, and I think I'm continuing this video further. I shall do more parts, but I shall leave the H part for you. Okay, I have written the next part. You can stop the video here and you can do this question. I shall not explain you this question, but after a while you will see I shall perform the whole solution. You can match your solution with my solution. Note till here. That's it. Now we shall enter into another
you can say a bit higher level of these question. The question number 2's A part has been written. You should be mentally prepared to understand this lecture. First of all, write 3n square as it is, like the previous question, plus 7 as it is, and this plus 7 as it is. And since the factorization we have to perform, so in place of this 10 and you shall not write anything. Instead, you will place this positive sign in between this. And what you need to do, I would like to remind you of that tip, which you will make a umbrella type shape like here, connecting the first value and the last value. I mean the value with the with the square, and with the value without, and I mean the constant will be attached with it. So 3 7 is actually 21. You have to find in which tables 21 appear. First of all, one table 121 will be what? 21. 3 7 times 21, 7 3 times will be 21, and 21 1 times will be 21. You need to find out in which pair gives, after adding, gives us 10. क्या हम 3 और 7 को ऐड करें तो 10 आ जाता है? जी हाँ। तो इससे बेहतर है 7 और 3 को पिक कर लें, क्योंकि बड़ी वैल्यू को स्टार्ट में होना चाहिए। 7n plus 3n. Now you will open the bracket 3n square. Because of the plus sign outside, the inside sign will not be changed. Plus will remain as it is, 3n plus 7. From this we shall only can take common n. 3 or 7 are not common, because 7 is not the multiple of 3. 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 7 जो है कॉमन नहीं आएगा। इवन के यानी कि 7 3 के टेबल में ही नहीं आता, तो 3 कॉमन नहीं आएगा। अगर 7 की जगह पे 6 होता तो हम 3 को कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 6 तो 3 के टेबल में अपीयर होता है। यहाँ से n स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन? क्योंकि n की जो सबसे छोटी पावर वाला होता है उसी को बाहर कॉमन लाया जाता है। यहाँ से 3 भी रह जाएगा, n स्क्वायर में से एक बाहर कॉमन है तो दूसरा n अंदर रह जाएगा। 7n का 7 तो बाहर नहीं है इसलिए अंदर रहेगा, इसका एक ही n था जो कि बाहर है इसलिए वो अंदर नहीं आएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें से कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ये दोनों चीज़ें ही अंदर आ जाएंगी, 3 1n प्लस 7। याद रहे कि ये वाली साइड वर्किंग साइड है, और हमेशा की तरह ये दोनों चीज़ें सेम अगर आती हैं तो दैट्स मीन यू आर गोइंग द राइट वे। n प्लस 1। बी पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग खुद करें। मैं वैसे आपके सामने लिख देता हूँ, लेकिन उसको समझाऊंगा नहीं, आप लोग करेंगे खुद। ये है जी बी पार्ट। ये अब ईमानदारी से वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको जो है खुद सॉल्व करके वीडियो पे वापस आए। जी स्टूडेंट, तो आपका बी पार्ट हो गया। अगर आपने बी पार्ट खुद से बिल्कुल ठीक से सॉल्व किया है तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप लोग सी पार्ट खुद से सॉल्व करें। वीडियो को यहीं पे ब्रेक लगाएं और इसको भी आप खुद अपने हैंड से सॉल्व करें अपना माइंड यूज़ करते हुए। जी अगर आप लोगों ने कर लिया है तो देख लें कैसे किया है। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा लिटिल बिट इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि बी पार्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मे बी आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई हो। 6q स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 12 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। इस दफ़ा मैं तेज़ी से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब मैं अगर एक्सप्लेन करने ही लगा हूँ तो ज़रा स्पीड पकड़नी है बाकी सभी पार्ट्स में। ये वाला जो साइन है ये बीच में लगा दें। 6 12 टाइम्स हो जाता है 72 टू 172 टाइम्स 72 टू 36 टाइम्स 72। 3 कितने टाइम्स 72 होता है? 24 टाइम्स 72, और 4 के टेबल में आता है 72 क्या? 3 24 टाइम्स और 4 72, 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस, यस 4 18 टाइम्स 72। 5 के टेबल में तो आना नहीं। 6 कितने टाइम्स अगर सॉरी 6 12 टाइम्स 72, यहाँ भी तो 6 12 टाइम्स 72 था। 7 के टेबल में तो आएगा नहीं। 8 9 टाइम्स 72, 9 8 टाइम्स 72, 12
10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं, तो 12 6 टाइम्स 72। यहाँ से देखते जाएं 12 के बाद जो है यहाँ पे 18 है, तो 18 4 टाइम्स 72, 18 4 टाइम्स 72। इसके बाद 18 के बाद 24 24 3 टाइम्स 72, 24 से ऊपर 36 2 टाइम्स 72, और एंड पे 72 1 टाइम्स 72। हमने इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करने से 17 आ जाए। तो जनाब ये पेयर है वो 9 और 8 का। 9 और 8 का, और 8 और 9 दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन 9 बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे। 9Q और 8Q, जो इधर अल्फ़ाबेट होगा वही इधर यूज़ करना होगा। अब मैं इस वर्किंग को मिटा देता हूँ। लेट्स ओपन द ब्रैकेट 6Q स्क्वायर एज इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइनस साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। +12। यहाँ दोनों से Q तो कॉमन है, सो है 3 भी कॉमन है। उसकी रीज़न ये है, ये 6Q स्क्वायर है ना, ये 9Q है। ये 6 का मतलब है 3 × 2, और यह 9 का मतलब है 3 × 3। कम अज़ कम इसको ऐसे तोड़े कि एक दफ़ा 3 ज़रूर आता हो। ये 3 यहाँ से और ये 3 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। ये 3 यहाँ से, ये 3 यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे रह गया यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो ये हिसाब यहाँ से होगा। Q तो कॉमन है, सो है, तो इसका अंदर रह जाएगा 2 और इसका रह जाएगा 3। इसका Q एक ही था, बाहर कॉमन है। ओ सॉरी, इसके साथ तो Q लगना है ना, 2Q -3। 3 2 टाइम्स 6, 3 3s are 9। वर्किंग मैं रिमूव कर देता हूँ। अब 8 और 12 का वर्किंग करनी पड़ेगी। 8 यहाँ पे है और 12 यहाँ से है। 8 का मतलब होता है 2 4 टाइम्स, या सॉरी 4 में इसको 4 2 टाइम्स कर लेता हूँ, बड़े से बड़े में करें ना। 4 3 टाइम्स, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, दोनों से कॉमन है ना, इसको बाहर लिख लेंगे। अंदर रह जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो ये यहाँ से 4 कॉमन लिया, Q इस दफ़ा कॉमन नहीं है। 4 यहाँ से रह गया 2, और Q तो साथ ही रह गया क्योंकि बाहर कॉमन नहीं था, और यहाँ पे 3। अगर आप दूसरे वे से देखें, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। यहाँ तक समझ आ गई तो फिर सब कुछ ही आ गया, बाकी तो समझाने वाली बात ही नहीं रह जाती। 2Q माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस की वजह से ये, अब देखा जब मैंने इनको चेक किया तो ये इसके अंदर का सिंबल चेंज नहीं था, इस जैसा नहीं था। फिर मैंने देखा कि बाहर माइनस की वजह से ये प्लस ने माइनस हो जाना है। जब आप ब्रैकेट प्लेस करते हैं तो अंदर वाले साइन, जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, जब ब्रैकेट खुद से लगाते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं। 2Q -3 दोनों एक जैसा आ गया, 3Q -4। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, आंसर आ गया। अब अगला पार्ट बिना एक्सप्लेन किए कर दूंगा, आप लोगों ने खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नोट करें और वीडियो को स्टॉप करके ईमानदारी से ऑनेस्टली आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और फिर वापस आ जाए। वर्किंग साइन चेंज्ड, ये पूरा कॉमन है इसलिए इसकी जगह पे 1, माइनस की वजह से साइन चेंज, एंड क्वेश्चन सॉल्व्ड। ये मैंने ई पार्ट लिख दिया। फिर से मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इस ई पार्ट को खुद से करें। 8 15 टाइम्स 120, 12s 10s, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। गौर कीजिए, फोकस नाउ, एंड दैट्स ऑल। यू कैन नोट फुल ऑन सोल्यूशन। एफ पार्ट नोट कर लीजिए और इसको भी ऑनेस्टली खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। अब तक इतने ज़्यादा पार्ट्स कर चुके हैं, आई होप यू विल बी वेल प्रिपेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। स्टेप बाय स्टेप यू कैन स्टॉप एंड सॉल्व इट। ये रही 120 के लिए वर्किंग, लेकिन इनमें से एक तो नीचे मिस हो गया। ये वाला पेयर ठीक रहेगा, 24 और 5। फोकस हेयर, नाउ हेयर, दैट्स द सॉल्यूशन। चलें जी, ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लें। अब ये मैं ही आपको साथ साथ करवाता जाता हूँ।
काफ़ी पार्ट अगर आपने खुद से कर लिए हैं तो 4u² एज इट इज़ माइनस 21 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, बस 8u के लिए स्पेस खाली, दरमियान में ये वाला साइन। 421 टाइम्स क्या होता है, वर्किंग करने लगा मैं यहाँ पे, वर्किंग 4 1 ज़ा 4 4 2 टाइम्स 8 84 होता है। 84 किन के टेबल में आता है वो सारे टेबल्स मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। अभी तक जितने लिखे हैं इनमें से ये पिक कर लिया है। 14 को पहले लिख दें, 14u माइनस 6u करेंगे तो आपके पास 8u आ जाएगा। 4u² माइनस 14u प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट खुली तो वो माइनस जो है प्लस में चेंज हो गया। इन दोनों में से 4 कामन नहीं, देखें यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे 14 है, 2 7 टाइम्स सॉरी 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 7 टाइम्स 14 होता है, तो 2 कामन हुआ ना, बस पीछे ये वाला 2 रह जाएगा और यहाँ से ये 7 रह जाएगा। तो अगर 2 कामन आता है और साथ में u भी कामन है क्योंकि u दोनों में मौजूद है, छोटी पावर वाला बाहर कामन लेंगे, 2 टाइम्स 4 और एक u बाहर इसका है, दूसरा u अंदर, क्योंकि u की पावर 2 थी इसलिए एक u बाहर एक u अंदर कह रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 2 7 टाइम्स 14 इसका एक u था जो कि बाहर है। यहाँ से 6 और 21 है, 6 को अगर आप ब्रेक करते हैं 21 को ब्रेक, 3 2 टाइम्स और 3 7 टाइम्स, दोनों में 3 अपीयर हो रहा है, 3 बाहर कामन हो तो पीछे रह जाता है यहाँ से 2 और यहाँ से 7, 3 कामन हो तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 7 टाइम्स 21, ये दोनों चीज़ें एक जैसी आ जाएंगी। तो 2u माइनस 7 को ओनली वंस लिखेंगे, 2u प्लस 3, यहाँ से 2u और यहाँ से प्लस 3 एंड दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को अगर आप खुद करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी। 18 को अगर आप 39 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 702 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके अब आप लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसको देखना कि 702 किन किन के टेबल्स में अपीयर होता है। देखिए 120 की इतनी लंबी मैंने वो साइड पे रखी हुई है, तो खुद सोचे 702 के लिए कितना लंबा वो हमें देखना पड़ेगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सर्व कर रहा हूँ, आप वीडियो फुल वॉच जब कर लें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, इसका सलूशन मौजूद होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर सो लॉन्ग वीडियो। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करने की पूरी कोशिश की है कम से कम टाइम में, तो आप लोगों को भी घर बैठे फैसिलिटी मिल चुकी है कि आप लोग इन हॉलीडेज़ के दौरान जो है इस चैनल से बेनिफिट हासिल करते हुए अपना स्टडी को स्टॉप मत कीजिए, स्टडी को ब्रेक मत लगाएं, अपना जो है तसलसल कायम रखें और आगे समझने के लिए पीछे वाली चीज़ों को साथ साथ कवर अप करते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।